Hello everyone, today we are here with Class 5 EVS book. Let's explore our environment of APS. Today we shall read, understand the chapter blow hot, blow cold. What do you understand by blow hot and blow cold? Blow hot means when we exhale, that air is hot, that is carbon dioxide. When we blow in means breathe in, that air is cold. So here it is in the reference of blow in and blow out. Means to say breathe in, breathe out. Okay, inhale and exhale. When we inhale, the air, the oxygen that we inhale is cool, and when we exhale carbon dioxide, it is hot. So let us understand about the process of breathing. Breathing is speed, breathing hot and cold, and good breathing habits. Generally, we know that breathing process is a continuous process in our life, and breathing speed is also continuous. When we get sick, it is disturbed. And good breathing exercises are, good breathing habits are, one thing is very common, take yoga and do exercises. But there is much more about this. Let us discuss on this topic. All living things breathe to stay alive. Yes, life is, when life is said, when we breathe in or breathe out, we say that there is life. When the breathing is stopped, there is no life. Breathing in and taking in and giving out of the air. Breathing is the taking in and giving out of the air. We breathe in oxygen and breathe out carbon dioxide. It is true. We breathe in oxygen and breathe out carbon dioxide. Breathing helps our body to absorb oxygen. ऑक्सीजन कहाँ से? हमारे जो एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन है उसको हम एब्जॉर्ब करते हैं एंड रिमूव हार्मफुल कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम आवर बॉडी. ये हमारी बॉडी में सर्कुलेट होती है और अपने साथ जर्म्स वगैरह निकाल के हार्मफुल कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में हम इसको बाहर एक्सहेल करते हैं. द ऑक्सीजन वी ब्रेथ इन हेल्प टू डाइजेस्ट फूड. और ऑक्सीजन का क्या काम होता है? जो कि हमारे फूड के डाइजेशन में हेल्प करती है एंड कन्वर्ट इट इनटू एनर्जी. Respiratory system. What is respiratory system or respiration? In this picture you can see that there is nose, windpipe, lungs and diaphragm. Yes, these all help in our respiration. Respiration means to say breathe in, breathe out. Take a deep breath in and breathe out. The process of breathing in air is called inhalation और इंस्पिरेशन. इसके लिए अलग वर्ड एक टर्म दिया गया है, इनहेलेशन और इंस्पिरेशन. इंस्पायरेशन. द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग आउट एयर इज कॉल्ड एक्सहेलेशन. एक्सहेल बोलते हैं ना, तो वर्ड इज मेड ऑफ एक्सहेल ओनली, एक्सहेलेशन और एक्सपायरेशन. जब किसी की डेथ होती है तो हम कहते हैं ना एक्सपायर हो गया, बिल्कुल ही उसकी ब्रीथ आउट ब्रीथिंग खत्म हो जाती है. ब्रीथिंग इन इंस्पायरेशन एंड ब्रीथ आउट एक्सपायरेशन. The whole process is called respiration. Whole process is called respiration. और इस process में जो help करते हैं, the organ system responsible for respiration is called respiratory system. The main organs of respiratory system are nose, windpipe, lungs and diaphragm. We breathe in air through our nose, right? The tiny air inside our nose trap the dust to prevent it to enter the body. जो हमारी नाक में छोटे छोटे बाल होते हैं उससे हमारी डस्ट और गंदी चीजों को हमारी बॉडी में जाने से रोकते हैं. The air we breathe becomes warm in our nose. It goes through the windpipe into a pair of bag-like structure located in our chest is called lungs. Yes, bag-like structure है, bag-like structure है और balloon की तरह वर्क करता है. The lungs are protected by a rib cage. एक पिंजरा बना हुआ है हमारी बॉडी में. You can see on this next picture एक पिंजरा सा बना हुआ है, इसमें हमारा लंग
सेफ है। लंग और अदर बॉडी पार्ट्स, मेन स्टमक वाले पार्ट सब सेफ है इसमें। विच कंसिस्ट ऑफ 12 पेयर्स ऑफ कर्व्ड बोन्स कॉल्ड द रिब्स। रिब्स ज्वाइन विद ईच अदर इन पेयर्स and forms a rib cage, and this rib cage also protects the heart. A strong muscular organ called diaphragm lies below the heart. Heart के नीचे एक diaphragm नाम की चीज होती है. It moves our chest in and out every time when we breathe in. जब आप सांस लेते हैं तो आपने देखा होगा आपकी बॉडी, आपकी चेस्ट अप डाउन अप डाउन अप डाउन होती है, आपका टमी भी अप डाउन अप डाउन अप डाउन होता है। ठीक है, उसको कन्वर्ट करता है, उसके लिए कन्वर्ट करता है कौन सा बॉडी पार्ट? डायफ्राम हेल्प करता है उसमें। व्हेन वी ब्रीथ इन एयर द डायफ्राम मूव्स डाउन एंड लंग्स एक्सपेंड द इनहेल्ड एयर, और लंग्स बड़े हो जाते हैं, बैलून की तरह फूल जाते हैं। व्हेन वी ब्रेथ आउट द डायफ्राम रिलैक्सेस एंड मूव अप पुशिंग द एयर आउट ऑफ द लंग्स, और हमारी एयर बाहर चली जाती है जिसको हम कहते हैं ब्रीथ आउट। तो हमारे लंग्स फ्लैट हो जाते हैं। अगेन जब एयर जाती है तो फिर बैलून की तरह फूल जाते हैं। एंड देयर आर मिलियन ऑफ एयर सैक्स, ये इसमें बहुत छोटे छोटे एयर सैक्स होते हैं हमारे लंग्स में, दैट इज कॉल्ड एल्वियोली इनसाइड द लंग्स। दे आर कवर्ड विद अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स, ट्यूब्स मतलब वेन्स लाइक ट्यूब्स दैट कैरी ब्लड अराउंड द बॉडी। द इनहेल ऑक्सीजन गेट्स एब्जॉर्ब्ड बाय द ब्लड which distributes oxygen to the whole body. The food is oxidized to release energy. ठीक है, ऑक्सीजन हमारे फूड में जाती है एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन जब इसमें जाती है तो हमारा फूड अच्छे से डाइजेस्ट होता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज हार्मफुल टू द बॉडी, दैट एवरीबडी नोज। इट इज सेंट थ्रू द ब्लड टू द लंग्स एंड देन आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द nose. You can see in this diagram oxygen we inhale through nose, then it goes to windpipe, then lungs, then alveoli, sacs में जाती है, ब्लड में सप्लाई होती है, बॉडी में होती है और कार्बन डाइऑक्साइड में बनकर बाहर निकलती है। Now let us understand about breathing speed. ये स्पीड क्या होती है? ब्रीथिंग स्पीड। The speed of breathing changes with different activities. It becomes faster when we run, swim or cycling. हाफने लगते हो ना आप? It is because when we require more oxygen, the heart beats faster to pump more blood, और हम हाफने लगते हैं, अपनी सांस लंबी लंबी लेने लगते हैं। The blood carries oxygen to all body parts, और जल्दी जल्दी ब्लड ऑक्सीजन बॉडी पार्ट्स में सप्लाई होता है, मूव करता है, in order to burn food faster, और जिससे हमारा खाना भी जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, एंड टू रिलीज मोर एनर्जी। ऑन एन एवरेज आवर हार्ट बीट 72 टाइम्स पर मिनट। कितने? 72 टाइम्स पर मिनट। इट बीट्स अप्रोक्सीमेटली 1 लाख टाइम्स अ डे टू पंप ब्लड टू ऑल ओवर बॉडी पार्ट्स। सारे बॉडी पार्ट्स में पंप करता है ब्लड को। अ रेस्टिंग हार्ट पंप्स ब्लड स्लोली। जब हम सो जाते हैं तो धीरे धीरे पंप होता है, अबाउट 60 मिनट्स 60 टाइम्स इन अ मिनट, या 60 टाइम्स इन अ मिनट while sleeping. Doctors listen to the heartbeat of patients by using a special instrument called stethoscope. We can also feel the heartbeat of a person by touching the wrist of the person's left hand with the fingers of our right hand. जैसे कि डॉक्टर्स आपकी रिस्ट को पकड़ते हैं, आपको लगता है क्या वो सुन रहे होंगे, वो आपकी जो इसमें वेन्स होती हैं, हैंड में रिस्ट में जो वेन्स होती हैं, उनको पकड़ के उनको टच करके आपकी हार्ट बीट सुन रहे होते हैं। यू कैन काउंट योर पल्स रेट और द नंबर ऑफ टाइम्स योर हार्ट बीट्स इन अ मिनट। आ लेफ्ट लंग इज लिटिल स्मॉलर देन द राइट लंग। दोनों बराबर नहीं होते हैं, लेफ्ट वाला थोड़ा छोटा होता है, because it accommodates the heart on the left side of the chest. Our heart keeps on beating from the moment
We are born till the moment we die without resting at all. It never tires. अगर हार्ट रुक गया तो मतलब क्या होगा? डेथ. Breathing hot and cold. We use our breath in many ways too. We blow on hot things to cool them. और क्या करते हैं कि चीज़ को फूंक मार के हम ठंडा करते हैं. ठीक है, चाय को, कॉफ़ी को, दूध को या खाने को बाइट खाते हैं तो स्पून में जो चीज़ लेते हैं उसको फूंक मार के ठंडा करके तो मुंह में रखते हैं. वो भी हालांकि हम हॉट एयर निकालते हैं, हॉट एयर एक्सहेल करते हैं, बट क्या होता है, जो चीज़ हमारे पास है उससे ज़्यादा तो हमारी एयर कूल होती है. जितना हॉट वो चीज़ है जिसको हम ठंडा कर रहे हैं उतनी हमारी एयर हॉट नहीं होती, जो कि हम ब्रीथ आउट करते हैं, ब्लो करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वी ब्लो ऑन हॉट टी, hot milk, hot food items to cool them so that these do not burn our tongue. We blow on our hands to warm them on chilly days. हाथ रगड़ के, फूंक मार के उसको गर्म करने की कोशिश करते हैं. It is because our body is warm inside at a temperature of 98.4 degree Fahrenheit. क्या टेम्परेचर है नॉर्मल बॉडी का? 98 डिग्री Fahrenheit. Blow on a mirror और योर स्पेक्स, ग्लासेस. कई बार उसको क्लीन करने के लिए हम हा करते हैं मुंह से और थोड़ा सा हमारा सलाइवा या एयर मॉइस्चर उस चीज़ पर आ जाता है और तो हम उसको क्लीन कर देते हैं. तो दिस इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस. अच्छी बात नहीं है ये ऐसे करना. दैट इज़ ऑल थूक ही है हमारा. ठीक है, सलाइवा ही है हमारा वो. तो दैट इज़ नॉट गुड टू रब ऑन दैट. दैट इज़ वेरी हीनियस, बट पीपल डू इट. This is an example only. You do not try this. The surface becomes cloudy and it becomes our breath has water vapors which condense on coming in contact with a cold surface. We blow on a burnt fingers to cool them. जब हमारी उंगली जल जाती है तो उसको ठंडा करने के लिए हम फूंक मारते हैं उसमें. कोई भी चोट लग जाती है तो फूंक मारते हैं उसमें. But the air we breathe out is cooler than the burnt area. A person cooking on चूल्हा blow on the burning pieces of wood. फूंक मार के क्या कर रहे होते हैं? आग को और बढ़ा रहे होते हैं. It increases the supply of oxygen. जिससे कि फूंक मारना मतलब ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ेगी. ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ेगी तो आग और बढ़ेगी. Helps the fire to burn. Now here are some good breathing habits. It is advisable to develop good breathing habits to stay healthy. Number 1, we must try to breathe in fresh air. True. Do not cover your head while sleeping. मतलब तो अगर आपने कवर कर लिया माउथ अपना, फेस कवर कर लिया, ढक लिया उसको, तो ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो गई. और जब ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो गई तो आपको ऑक्सीजन कम मिल रही है, मीन्स आप बीमार हो सकते हो. नेक्स्ट इज ऑलवेज ब्रेथ इन थ्रू द नोज एंड नॉट थ्रू द माउथ. नोज से सांस नहीं लेनी है, नोज से सांस लेनी है, माउथ से नहीं. नोज से सांस क्यों लेनी है? बिकॉज नोज में छोटे छोटे हेयर्स हैं, हमारे स्मॉल हेयर्स हैं जो कि हमारी एयर को क्लीन करते हैं. जो भी डस्ट पार्टिकल या कोई भी जर्म्स वगैरह आ गए हैं उसको वहीं पे स्टॉप कर देते हैं. बट अगर हम माउथ से लेंगे तो माउथ में तो वो हेयर है नहीं, तो वो डस्ट पार्टिकल्स और डर्ट, गंदगी हमारे अंदर चली जाएगी, जो कि पूरी बॉडी में चली जाएगी. And that will be harmful to us. The hair in the nose acts as filters to trap the dust particles. Practice some deep breathing exercises every morning in the fresh air. That is very important. Let us recall, all living things need to breathe to stay alive. True? Yes, सबको सांस लेने की जरूरत है. जीवित रहना है तो सांस लेना है. The process of respiration involves inhalation and exhalation. Learn the spelling also. The inhaled air is rich in oxygen and exhaled air is rich in carbon dioxide. The speed of breathing changes with activity. जैसे हम काम करते हैं वैसे ही हमारी speed of breathing change होती रहती है. We use our breath to cool and warm the things. किसी चीज़ को ठंडा और किसी चीज़ को गर्म करने के लिए हम अपनी ब्रेथ का यूज़ करते हैं. ब्रेथ से जो मॉइस्चर बाहर आता है उसको हम यूज़ करते हैं क्लीन करने के लिए चीज़ों को.
ठीक है. In this way, this chapter is done. This much is described in this. Read the chapter again and again and try out the exercises also. Thank you. Have a nice time. Do not forget to like, subscribe and share. Wait for more videos to learn and understand.